Yes, bete. In our lecture 6, we will be first discussing the numerical problem related to our very first qualitative property called relative lowering in vapor pressure. तो relative lowering in vapor pressure discuss करने के बाद उसकी कुछ numerical problems देखते हैं. उसके बाद हम आगे दूसरी qualitative properties पर जाएंगे. तो suppose I have a question saying 6 gram of urea, molecular weight urea का दिया हुआ 60, was dissolved in 9.9 moles of water if vapor pressure of pure water is P naught, then the vapor pressure of solution is 6 gram of urea was dissolved in 9.9 moles of water. If vapor pressure of pure water is P naught, the vapor pressure of solution is A 0.10 P naught, B 1.10 P naught, C 0.90 P naught, D 0.99 P naught. Right? 6 gram of urea was dissolved in 9.9 moles of water. If vapor pressure of pure water is P naught, the vapor pressure of solution is. Right? तो RLVP है क्या बेटे? RLVP is P naught minus P by P naught n by n plus n. This is RLVP. What is n? N is 6 by 60. Moles of urea, given mass is 6. Molecular weight is 66 by 6, 0.1. And what is capital N? Capital N given to use 9.9. So what are total moles? Total moles are 10. So what is this equation? P naught minus P by P naught. This is equal to 0.1 by 10. Right? N by n plus n, that is 0.1 by 10. So this is 1 by 100. So P naught by P naught minus P by P naught is equal to 1 by 100. है ना? तो P naught by P naught is 1. 1 minus P by P naught is equal to 1 by 100. So 1 minus 1 by 100 is equal to P by P. This is 100 minus 1 by 100 is equal to P by P naught. 99 by 100 is equal to P by P naught. So basically 0.99 P naught is equal to P. 0.99 P naught is equal to P. So the answer to our very first problem is option number D. Solve किया है हमने इसको properly. Right? So very easy question. Moving on to our next problem. Let us discuss the very next problem. ठीक है, we are having the next problem. Yes, next question says मोलैरिटी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं या दूसरी प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं. So the next problem says an ideal solution was found to have a vapor pressure of 82 when mole fraction of non-volatile solute is 0.2. What would be the vapor pressure of pure solvent at same temperature? A 64 torr, B 80 torr, C 100 torr, D 400. Okay? An ideal solution was found to have a vapor pressure of 80 torr when mole fraction of solute was found to be 0.2. What would be
द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट सेम टेम्परेचर। तो ये एक्चुअली राउल्ट्स लॉ से तो प्रॉब्लम है, लेकिन राउल्ट्स लॉ का जो केस 1 हमने डिस्कस किया था, दिस इज प्रिसाइजली फ्रॉम दैट, है ना। आइडियल सॉल्यूशन है, सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है, ये मेंशन किया हुआ है, राइट। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P is equal to partial pressure of solvent. What is partial pressure of solvent? P naught into 1 minus mole fraction of solute. लिख सकते हैं P is equal to P naught into 1 minus mole fraction of solute. What is vapor pressure of solution? This is 82, and that is equal to P naught and 1 minus 0.2, that is 0.8. तो 80 by 0.8 is equal to P naught. So बच्चे P naught is equal to 100. तो very easy, very basic problems. So the answer to this question is C, है ना। बेटा मैं हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको बोलती हूँ, जस्ट स्टिक टू द कंसेप्ट्स। अगर आप कंसेप्ट से स्टिक्ड रहेंगे, आपको किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगी। यू विल बी एट ईज टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हम बेटा इस डिस्कशन के साथ ही अपनी अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विच वी नीड टू डिस्कस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, that is elevation in boiling point, और इस elevation in boiling point को हम रिप्रेजेंट करते हैं as delta T। elevation in boiling point delta T। What do you mean by elevation in boiling point? Before discussing this, we need to define the definition of boiling। तो आपको सबसे पहले किसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो ध्यान से समझो, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ substance gets equal to the external pressure is called boiling point of that substance। ठीक है, have a look at the definition. We have written the temperature at which the vapor pressure of the substance gets equal to the external pressure is called boiling point of that substance। किसी भी सब्सटेंस के लिए वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो उस लिक्विड का क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ एक और टर्म आती है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ एक और टर्म आती है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू 1 atmospheric pressure। is called normal boiling point of that liquid। मतलब हमने जनरल बात कह दी कि जब किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो जिस टेम्परेचर पर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन जब बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हो तो बाय डिफॉल्ट
सिस्टम का प्रेशर 180 के बराबर आ जाए। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स्ड हो दैट इट इज नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस केस में बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज देखिए बेटे, यहां पर मैं प्रेशर प्लॉट कर, हियर आई एम प्लॉटिंग प्रेशर। ठीक है, आप सबको पता है कि अगर ये P नॉट है, व्हाट इज P नॉट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और ये P है, P इज व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing volatile solvent and non volatile solvent। ठीक है, P नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है containing volatile solvent and non volatile solute। तो आपको दिख रहा है कि P नॉट इज ग्रेटर देन P, है ना? ये हम पिछली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ के आए हैं। एंड सपोज दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर, दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अब ये हमने बात तय कर दी। अब सॉल्यूशन बेटा कब बॉयल होगा? जब सॉल्यूशन का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन will boil when solution's pressure will be equal to the external pressure। और प्योर सॉल्वेंट कब बॉयल करेगा? जब सॉल्वेंट्स वेपर प्रेशर will be equal to external pressure। किस केस में प्रेशर डिफरेंस आपको ज्यादा मिल रहा है? भाई मान लो ये 80 टोर था, ये 40 टोर है और ये 122 है सपोज, तो किसमें प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है? किसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए? ऑब्वियसली सॉल्यूशन को। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉलेटिलिटी। मतलब जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, वेपर्स में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर वेपर्स में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है मतलब हमें जो टेम्परेचर देना पड़ रहा है वो रिलेटिवली कम देना पड़ रहा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉलेटिलिटी एंड एक्चुअली इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। मतलब जिस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था तो मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। ऐसी सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था और वोलेटाइल सॉल्वेंट था इसका वेपर प्रेशर कम था तो मतलब ऐसी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अभी तक हमने सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया है, देन वी हैव डिफाइंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड देन वी हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो उस सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली रिलेटेड होगा। सो अब हम अपनी प्रॉपर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे जाते हैं दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कि इस डिस्कशन से हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं बने रहने देती हूँ ताकि आपको कंपैरिजन पता लग जाए। हमने कहा था P is vapor pressure of solution and that is less than P naught which is vapor pressure of solvent, right? P is vapor pressure of solution and that is less than P naught which is vapor pressure of solvent. Since vapor pressure and boiling point are inversely related, so if TB is what? Boiling point of such solution. TB is boiling point of solution. It would be greater than TB naught. And what is TB naught? TB naught is boiling point of solvent. ठीक है,
TB is boiling point of solution, TB naught is boiling point of solvent. So since an elevation in boiling point is observed on forming solution, so this elevation delta TB minus TB naught, this is called elevation in boiling point. ठीक है, इसका मतलब समझो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव प्योर वाटर, प्योर वाटर कैसे काम करता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, और हमने मान लिया है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है प्योर वाटर का, सपोज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। सो वी हैव प्योर वाटर सॉल्वेंट है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो वी हैव प्योर वाटर सॉल्वेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इस वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और हमने क्या कर दिया, अब हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, केस 1। अब केस 2 में हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट वुड बी ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाई? बिकॉज सॉल्ट सॉल्यूशन बना देने से इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा और उसको एक्सटर्नल प्रेशर तक मीट अप करवाने में हमें टेम्परेचर जो है सिस्टम को, सॉल्यूशन को वो ज़्यादा ऑफर करना पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बेटा क्या है, ग्रेटर है। तो प्योर सॉल्यूशंस हैव हायर boiling point than pure solvents, and this increase in boiling point is termed as elevation in boiling point. And most importantly, elevation in boiling point is a colligative property, इसीलिए इस चैप्टर में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे देखें, we will say that delta TB is a colligative property। colligative property का मतलब सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी आपने कितना सॉल्यूट डाला है, कौन सा सॉल्यूट डाला है, किस नेचर का सॉल्यूट डाला है, इस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो डेल्टा TB इज अ colligative property। मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं हम देखें, mathematically what we could say, mathematically we could say that this delta TB जिसको आप लिख रहे हो as TB minus TB naught is equal to या is proportional to molality of solution। ठीक है, जब हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की थी मैंने तब भी आपको बताया था कि इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली कंसंट्रेशन टर्म जो है वो या तो मोल फ्रैक्शन होगी या मोलैलिटी होगी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हैज बीन फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा and that constant would be Kb into n, right? Expression for elevation in boiling point, which is a colligative property. Here Kb is what? Kb is called molar elevation constant, molar elevation constant, or also known as ebuloscopic constant। ठीक है, Kb is molar elevation constant or also known as ebuloscopic constant। तो Kb is molar elevation constant और ebuloscopic constant। डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, if molality of solution is 1 then delta TB will be equal to Kb। मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन की वजह से जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए बेटे एक और नाम दिया गया है, दैट इज ebuloscopic कांस्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है
कि ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ये किसकी प्रॉपर्टी है? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट एंड मैथमेटिकली दिस इज इक्वल टू R TB नॉट स्क्वायर बाय 1000 into LV, ठीक है। क्या मतलब है अच्छे से बताती हूँ। KB is the property of solvent। KB किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी। सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी कहने से क्या मतलब है कि अलग अलग सॉल्वेंट्स के लिए KB की वैल्यू अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल KB फॉर वाटर इज 0.52 Kelvin kg per mole। KB for water is 0.52 Kelvin kg per mole। वाटर के लिए KB की वैल्यू किसके बराबर है? 0.52 Kelvin kg per mole के बराबर है। 0.52 Kelvin kg per mole के बराबर कहने का मतलब है कि जहां भी आपका वाटर सॉल्वेंट होगा आप KB की वैल्यू ये यूज करोगे। और मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी वाटर के लिए KB की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सॉल्यूशंस में जो सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा? वाटर ही होगा। तो इसलिए वाटर एज ए सॉल्वेंट बहुत पॉपुलरली यूज्ड है, इसलिए आपको वाटर के लिए KB की वैल्यू याद रखनी है, दैट इज 0.52 Kelvin kg per mole। Numerically this KB is equal to R TB naught square by 1000 into LV। What is LV? LV here is latent heat of vaporization। What is LV? LV is latent heat of vaporization। LV यहाँ क्या है? latent heat of vaporization। What is latent heat of vaporization? कि किसी भी सब्सटेंस को जब आप वेपराइज करते हो तो बिना टेम्परेचर इंक्रीज हुए जब तक वो पूरा का पूरा स्टेज चेंज नहीं हो जाता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, दैट इज latent heat of vaporization। Numerically this latent heat of vaporization is heat of vaporization, enthalpy of vaporization divided by molar mass। मतलब ये 1 ग्राम के लिए डिफाइन होती है। डायरेक्ट वेपराइजेशन जो है वो एंटायर 1 मोल के लिए डिफाइन होती है। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? KB is equal to R TB naught square multiplied by molar mass of what? solvent की प्रॉपर्टी divided by 1000 into heat of vaporization। TB naught boiling point of pure solvent, molar mass of solvent, R universal constant, gas constant, delta H vaporization is heat of vaporization। तो जो न्यूमेरिकल रिलेशंस आपने याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं कि एक डेल्टा TB किसके बराबर है? KB into M के बराबर है। और दूसरा जो KB है वो प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट का, और वो किसके बराबर होगा? R TB naught square by 1000 into latent heat of vaporization। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है कि जब भी आप किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो तो उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। और प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मैथमेटिकली डेल्टा TB किसके बराबर होता है? KB into M के बराबर होता है। और KB सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, वाटर के लिए KB की वैल्यू 0.52 Kelvin kg per mole रहती है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कितने पार्टिकल सॉल्यूट के ऐड किए हैं, कौन सा सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किया है, उसका नेचर क्या है, इस पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करेगा। तो कहने का मतलब अगर आपने सुक्रोज के कुछ मोल्स डाल के सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाया है और उतने ही मोल्स आपने ग्लूकोज के डाल के सॉल्यूशन बनाया है, तो दोनों ही केसेस में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा दोनों सॉल्यूशंस का क्या मिलेगा बेटा? सेम मिलेगा। तो दैट इज व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव
प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करने के बाद थ्योरेटिकली हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्दर वी आर डिस्कसिंग सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Yes, let us have two numerical problems from the same concept. है ना? Numerical expressions लिखे रहने देती हूँ, जो questions हैं वो हम discuss करते हैं। Question number 1 says when 1 mole of a solute when 1 mole of a solute is dissolved in 1 kg of water, boiling point of solution was found to be 100.5 degrees Celsius. Kb for water is, ठीक है। ऑप्शंस देखें आपके पास क्या क्या है। A 0.5, B 100, C 100.5, D 95.5। ठीक है। देखो बेटा, वैसे तो मैंने आपको बताया कि आपको याद रखना है वाटर का Kb क्या होता है, लेकिन हो सकता है जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई हैं, उससे आपका आंसर कुछ अलग हो जाए। तो हमें श्योर रहना है, इसको सॉल्व ही करना है। ठीक है। 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solution. So molarity is 1 by 1. Delta Tb, which is Tb minus Tb naught, is equal to Kb into 1. What is Tb? Boiling point of solution is 100.5 minus, ठीक है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको होता है 100 इज इक्वल टू Kb into 1। तो Kb कितना आ गया आपके पास? वेरी सिंपल, यहाँ से 0.5। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, राइट। वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वाटर प्योर सॉल्वेंट है। बाय डिफॉल्ट आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, ये मेंशन नहीं होता तो हम ढूंढते ही रहते हैं व्हाट इज Tb नॉट। Tb नॉट इफ सॉल्वेंट इज वाटर देन Tb नॉट इज 100। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ डेल्टा Tb ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन volatile non-electrolytic as well as non-associating solute in solvent where Kb is x Kelvin kg per mole is y kelvins, then depression in freezing point of solution of same concentration would be ठीक है। Kf of solvent is Z Kelvin kg per mole। थोड़ा सा आगे वाली क्वालिटेटिव टर्म के बारे में भी पूछ लिया है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी मैं अभी आपको, बट सॉल्व करना है आपने ये प्रॉब्लम। 2xz by y, yz by x, xz by y, yz by 2x। ठीक है। तो इसमें दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है ना। दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, कौन कौन सी? एक तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम समझ ही चुके हैं, और दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसकी ये बात कर रहा है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों की बात समझ लेते हैं बेटे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी समझ लेते हैं, डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट भी समझते हैं। तो बेटा लुक ऑन द बोर्ड वेरी केयरफुली। जैसे आपने पढ़ा कि डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, केबी इंटू एन। सिमिलरली डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है, केएफ। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा टीएफ? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे आया आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप याद रखो जिस तरह से आपने डेल्टा टीबी को क्या कहा है, केक्यू इंटू एम, उसी तरह से डेल्टा टीएफ को हम क्या कह रहे हैं, केएफ इंटू एम। तो डेल्टा टीबी इज केबी इंटू एम, डेल्टा टीएफ इज केएफ इंटू एम। ठीक है, वो कह रहा है डेल्टा टीबी ऑफ अ सॉल्यूट व्हिच इज नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, नॉन एसोसिएटिव। मतलब आपका सॉल्यूट ऐसा है जो सॉल्वेंट में जाने पर ना तो आयोनाइज कर रहा है, ना ही एसोसिएट कर रहा है, और वेपराइज भी नहीं हो रहा। तो आइडियल सॉल्यूट है। उसके लिए डेल्टा टीबी कितना आ रहा है हमारे पास, y, और सॉल्वेंट का जो केबी है वो x। ठीक है, फिर वो कह रहा है अगर KF Z है तो सेम सॉल्यूशन का डेल्टा TF क्या। ठीक है, तो सबसे पहले सेम सॉल्यूशन है तो मतलब सॉल्यूशन की मोलैलिटी दोनों केसेस में सेम रहेगी। यहाँ इस एक्सप्रेशन से मोलैलिटी किसके बराबर होगी, डेल्टा टीबी बाय केबी, और यहाँ मोलैलिटी किसके बराबर होगी, डेल्टा टीएफ बाय मोलैलिटी, सॉरी डेल्टा टीएफ बाय केएफ, राइट। सिंस सॉल्यूशन इज सेम तो मोलैलिटी इन बोथ द केसेस विल बी सेम। तो डेल्टा टीबी बाय केबी वुड बी इक्वल टू डेल्टा टीएफ बाय केएफ। डेल्टा टीबी बाय केबी वुड बी इक्वल टू डेल्टा टीएफ बाय केएफ। What is delta TB? Delta TB is y. What is KB? KB is x. Delta TF हमें निकालना ही है. You could write it to be delta TF as it is and x. This would be yz by x is equal to delta TF. yz by x. So beta option number B is your correct answer, है ना, for the same numerical problem. तो इसी तरह से बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड सेकंड वन जो हमने लेक्चर 6 में आज डिस्कस करी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हमारे पास डिस्कशन के लिए है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन करेंगे। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मेजरमेंट में कुछ एबनॉर्मैलिटीज़ देखने को मिलती हैं, वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। एक करेक्शन फैक्टर वांट ऑफ फैक्टर को लॉन्च करेंगे और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है रिगार्डिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो ये सब करके हम अपने चैप्टर को बेटा कंप्लीट करेंगे। अगेन अ वेरी इजी चैप्टर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत इजी चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं।